Very good morning to all of you. So, in the last class, we have started the statistics in class 11th, economics. So, in this chapter 1, we will go through the introduction of the statistics, as well as we will study the what is the meaning of the economics, statistics in the economics, scope and subject matter of this statistics, functions of the statistics, importance of the statistics, and the limitation of the statistics. Okay, so in the last class we have started the topic, that is, first of all, in order to understand and analyze the problem arising out of the economic activities of the men, so the concept of economics and statistics need to be understood first. Okay, if we want to, and as well as if we want to analyze the economic activities of the men, as well as what are the problem arising in the when the any individual going through the any economic activities, what are the problems are suffered by the any individual. So for that purpose we need to understand the what is the economics and what is statistics. Okay, so after in this chapter, the any individual or any student is able to know what the subject matter is of economics is about. Okay, which of which topic, of which content the economics is talking about. Okay, which subject matter, what is the scope of the economics. So we will study all these, as well as understood how knowledge of statistics can help in describing the economic activities. Okay, so the knowledge of statistics, if we know very well that what is economics and the function of economics, so that we can also describe the economic activities through the statistics also. Okay, so as well as we were started the topic, that is meaning of economics. Okay, what is economics? So economics is the social science which studied the human behavior, which aims at the allocation of scarce resources in such a way that a consumer can maximize their satisfaction, a producer can maximize their profit, and the society can maximize the social वेलफेयर. ओके, इकोनॉमिक्स क्या होता है? एक सोशल साइंस होता है जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, जिसका मेन मोटिव क्या होता है कि एलोकेशन ऑफ द स्कैर्स रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हमारे इकॉनमी में, हमारी कंट्री में क्या हैं, वो स्कैर्स हैं, तो उनका प्रॉपरली एलोकेट करना इन सच अ वे, ऐसे कि कोई भी कंज्यूमर को क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर को क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, और सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज दी सोशल वेलफेयर. ओके, सो economics is just about the making the choice when the resources are the scarce in the presence of the scarcity. मीन्स scarcity में आपको क्या करना है, एक चॉइस मेक करना है. कैसे आप किसी चॉइस को मेक करोगे, तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. सो first one is scarcity and the economic problem. What is scarcity and what is economic problem? Okay, so first of all, meaning of scarcity. In our daily life, scarcity means acute shortage of the certain commodity, but in economics it means limitation of the supply of a commodity in relation to its demand. Okay, it is excess of demand over available supply. That is, demand of resources is greater than supply of resources. When resources are less in relation to our wants, scarcity would arise. So simple कि अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं, तो स्कैरसिटी मीन्स एक्यूट शॉर्टेज ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी. ठीक है, किसी भी सिंपल कमोडिटी की, कोई भी कमोडिटी लेते हैं, उसकी हम क्या देखते हैं, शॉर्टेज. तो हम क्या बोलते हैं कि अरे इसकी क्या है, हमारे पास स्कैरसिटी. ठीक, कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ दी सर्टेन कमोडिटी, किसी भी सर्टेन कमोडिटी की शॉर्टेज. ठीक है, सो इट मीन्स लिमिटेशन, बट इन इकोनॉमिक्स we can express in the other words. In economics it means limitation of the supply of a commodity in relation to its demand. That means कि अगर हम लोग
लिमिटेशन ऑफ द सप्लाई, सप्लाई की क्या हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है इन रिलेशन टू इट्स डिमांड, मतलब डिमांड हमारी क्या हो जा रही है, बहुत ज़्यादा होती जा रही है एज कंपेरिजन टू सप्लाई ऑफ दी कमोडिटी। सप्लाई, किसी भी कमोडिटी की सप्लाई से ज़्यादा हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी कमोडिटी का, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपको इकोनॉमिक्स की बुक चाहिए, ठीक है, आप मार्केट में जा रहे हो, आपने शॉप पे बोला कि मुझे इकोनॉमिक्स की ये बुक चाहिए, तो वो ये बोला कि नहीं अभी तो नहीं है मेरे पास। फिर कोई नेक्स्ट इंडिविजुअल, नेक्स्ट क्लास 11 का स्टूडेंट गया, वो बोलता है कि मेरे को इकोनॉमिक्स की बुक चाहिए। फिर वो रिटेलर क्या बोलता है, नहीं अभी तो नहीं है, शॉर्टेज हो गई है इसकी। फिर कोई थर्ड स्टूडेंट आता है, ऐसे ही सारे स्टूडेंट आते हैं क्लास 11 के बुक लेने, बट वहाँ पे बुक है नहीं। तो डिमांड क्या हो गई, कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर लोग डिमांड कर रहे हैं, बट सप्लाई जो बुक की है वो क्या हो गई है, शॉर्टेज हो गई। तो इसी को बोलते हैं स्कैर्सिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज़ लेस इन रिलेशन टू द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। डिमांड किसी भी कमोडिटी की बहुत ज़्यादा हो गई है और सप्लाई क्या हो गई है, बहुत ही कम हो गई है। सो इन इकोनॉमिक्स, बट इन डेली लाइफ एज अ layman we will say the scarcity means a shortage of any commodity, ठीक है, किसी भी commodity की shortage होना, ये हम लोग क्या बोलते हैं, scarcity। but as a economics what you will say that means in relation to its demand the supply of a commodity is too much less, so it is the excess of demand ओवर अवेलेबल सप्लाई, ठीक है, जितनी भी किसी भी कमोडिटी की सप्लाई हो रही है उससे ज़्यादा उसकी डिमांड हो जाती है, मतलब एक्सेस ऑफ डिमांड, डिमांड का एक्सेस ओवर दी अवेलेबल सप्लाई, जितनी सप्लाई है उससे ज़्यादा किसी भी कमोडिटी की क्या हो गई है, डिमांड हो गई है। दैट इज़ डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इज़ ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। इफ़ डिमांड इज़ ग्रेटर देन supply of resources, it means it is the scarcity. So when resources are less in relation to our wants, scarcity would arise, means resources क्या हैं, आपको पता है कि resources क्या हैं, वो less हैं in relation to our wants, हमारी wants के comparatively, हमारे wants के relation में जो resource हैं वो क्या हैं, less हैं। तो यहीं पे क्या होती है, स्कैर्सिटी वुड अराइज, यहीं पे वो स्कैर्सिटी हो जाती किसी भी कमोडिटी की। सो मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ओके, हियर we discuss the meaning of the scarcity, okay. Simply scarcity means in layman language what we will say, it means the acute shortage of the certain commodity, supply of the any commodity, but in economics what we will say, it means the supply of the commodity is less over the demand of the commodity, means कि demand जो है किसी भी commodity की वो बहुत ज़्यादा हो गई है as comparison to supply of the commodity, so it is called the scarcity. Now next one is meaning of economic problem. So what is the meaning of the economic problem? So let us understand economic problem with help of this chart comparing human wants with resources, ठीक है, हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, इसमें क्या कंपेयर करेंगे, ह्यूमन वांट्स को कंपेयर करेंगे और रिसोर्सेस को कंपेयर करेंगे। ओके, लेट्स सी, हियर द ह्यूमन वांट्स एंड हियर द रिसोर्सेस विच इज़ अवेलेबल टू प्रोड्यूस और टू कंज्यूम द कमोडिटी। सो वी नो वेरी वेल दैट द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं, जैसे एज अ कंज्यूमर, एज अ ह्यूमन, हम क्या कभी ये कह सकते हैं कि वी आर सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट और वी आर सेटिस्फाइड विद दिस इनकम, वी आर सेटिस्फाइड विद दिस इनफ अमाउंट ऑफ मनी, हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। अगर हमारी कल सैलरी 1 लाख हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी सैलरी 1,20,000 हो। किसी की 2 लाख हो जाएगी तो जो एक्सपेक्टेशन है, हम लोग कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन क्या है, वो कभी भी फुलफ़िल, इतना हम लोग एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि वो ऐसा होगा ही नहीं कि हम ये कह देंगे कि वी आर सेटिस्फाइड। तो वैसे ही ह्यूमन वांट्स होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। आपको आज
आइसक्रीम मिलेगी, कल आप एक और एक्सपेक्ट करने लगोगी कल भी आइसक्रीम मिले, फिर परसों भी सोचोगे आइसक्रीम मिले। बट ह्यूमन वांट्स क्या हो गई, वो अनलिमिटेड होती है, वो उनका कोई भी लिमिट नहीं होता है। बट द रिसोर्सेज और द मीन्स दे ऑल आर लिमिटेड। अब हमारे पास, अब मेरे को आज मैं स्कूल गई, मेरे को एक आइसक्रीम खाने का मन किया, मैंने खा लिया, फिर कल मेरा आइसक्रीम खाने का मन किया, तो मेरा जो ह्यूमन वांट था, मेरा आइसक्रीम खाने का जो कंजप्शन करने का मन था, वो तो अनलिमिटेड है। बट जो मेरे पास अवेलेबल मनी है, ठीक है, वो क्या है, वो मनी आज के आइसक्रीम के लिए तो मेरे पास 10 रुपीज़ था, अब कल के आइसक्रीम के लिए मेरे पास क्या है, 10 रुपीज़ नहीं है, और मेरा मन तो कर रहा है खाने का। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमने आइसक्रीम, मेरा जो खाने का मन हुआ आज और कल भी, तो हमारी ह्यूमन वांट क्या हो गई, अनलिमिटेड हो गई। और जो रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है, वो मनी है, वो क्या है, लिमिटेड है। आज तो मैंने आइसक्रीम खा लिया 10 रुपीज़ का, बट अब कल के लिए मेरे पास मनी नहीं बचा है, तो हम क्या कह देंगे कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सो इन केस ऑफ अनलिमिटेड वी डिफर इन इंटेंसिटी एंड अर्जेंसी। अब किसी की भी डिमांड, कोई भी ह्यूमन वांट क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। अब हम अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करते हैं हम, और सबकी इंटेंसिटी और अर्जेंसी अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की इंटेंसिटी क्या है, आज 10 रुपीज़ है, तो आज किसी का मन है कि चॉकलेट खाने का, आज किसी का मन है आइसक्रीम खाने का, तो कोई एक क्या सोच रहा है कि नहीं मेरे पास आज पेन नहीं है, तो मैं क्या उस 10 रुपीज़ का पेन परचेस कर लूँ। तो डिफर इन इंटेंसिटी, किसी के इंडिविजुअल की किस कमोडिटी के लिए वो ज़्यादा इंटेंस है और किस कमोडिटी की उसके लिए ज़्यादा अर्जेंसी है। वो मे भी किसी इंडिविजुअल को उस 10 रुपीज़ का वो कोई और प्रोडक्ट भी परचेस करना चाहे, वो ये सोचे कि 10 रुपीज़ का वो yippee खरीद ले। तो ये डिपेंड किस पे करता है, किसी की अर्जेंसी कितना है। और ह्यूमन वांट क्या है, हमारी अनलिमिटेड है, मतलब उसका कोई लिमिट ही नहीं है। हम चाहे जितना हमको आप आज दे दो, तो कल फिर मेरा कुछ और मन करेगा। तो हमें ये टोटली किस पे डिपेंड करता है कि उस कमोडिटी की कितनी अर्जेंसी है, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा अर्जेंट नीड है, हम उसी को क्या करते हैं, फुलफ़िल करते हैं। हियर यू आर सीइंग दैट द रिसोर्सेज और मीन्स आर लिमिटेड। रिसोर्सेज हमारे क्या पास क्या है, वो लिमिटेड है एंड कैन बी पुट इन ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। अब रिसोर्सेज आपके पास क्या हैं, आपका रिसोर्स है यहाँ पे 10 रुपीज़, उस 10 रुपीज़ को आपको क्या करना है, आप उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ देखोगे। मीन्स आप ये सोचोगे कि उस 10 रुपीज़ का आप एक चॉकलेट परचेस करो, या उस 10 रुपीज़ की आप आइसक्रीम खाओ, या आप उस 10 रुपीज़ की सोचोगे 5 रुपीज़ की ब्लू पेन ले ले और 5 रुपीज़ की ब्लैक पेन ले ले, ठीक है। रिसोर्सेज आपके पास क्या हुआ, वो 10 रुपीज़ हुआ। अब आप उसको क्या करोगे, कैन बी पुट टू दी ऑल्टरनेटिव यूज़। आप उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ देखोगे कि किस चीज़ की हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एज अ प्रोड्यूसर क्या देखता है कि वो कौन सी ऐसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करे कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने पे उसको 40,000 मिल रहा है, नेक्स्ट कमोडिटी को प्रोड्यूस करने पे वो सोच रहा है 80,000 उसको मिलेगा, तो ही विल गो थ्रू दी 80,000 ना, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव देखेगा कि किस में उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। एज अ कंज्यूमर हम देखेंगे कि कौन सी कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद हमको सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, वो ज़्यादा मिल रहा है। ओके, सो व्हेन वी विल मर्ज इट बोथ ऑफ देम, सो नेक्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस। अब हमारे पास ऑप्शन और प्रॉब्लम क्या आएगी कि प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस, कि अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि किसको हम लोग अडॉप्ट करें, किसकी चॉइस ले, कौन से गुड्स को हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, किस गुड्स को हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस। दिस इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यही होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमें पता है ह्यूमन वांट्स क्या होते हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं, और इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन दी urgency or the need of the any commodity, and the resources are the limited, and we will put all these resources on the alternative uses। हम resources को क्या करते हैं, alternative use पे रखते हैं। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस। अब हमारे पास क्या है, एक प्रॉब्लम ये है कि किस ज़्यादा गुड्स को, किस कमोडिटी को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, किसको हम लोग सेलेक्ट करें, किसको हम लोग रिजेक्ट करें। सो दिस इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यही होती है आपकी economic problem। Okay, you can see the example is given here,
if you have a 10 rupee note, as I am giving the example, already I have given the example, you can see you have 10 rupee note, आपके पास क्या है 10 रुपी की नोट है, you want to buy a copy, a pen, a chocolate and a pencil. अब यहाँ पे आप देखो, yes, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, वेट अ मिनट, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यू हैव अ 10 रुपी नोट. अब ये 10 रुपी नोट आपका क्या हो गया, रिसोर्स. ठीक, कि आपके पास रिसोर्स क्या है, 10 रुपी नोट है. यू वांट टू बाय अ कॉपी, आप कॉपी बाय करना चाहते हो, पेन बाय करना चाहते हो, चॉकलेट बाय करना चाहते हो, पेंसिल बाय करना चाहते हो. और आपकी वांट क्या हो गई, ह्यूमन वांट्स हो गई. आपकी देखिए आपके पास 10 ही रुपीज़ है और आप क्या क्या बाय करना चाहते हो, कॉपी भी बाय करना चाहते हो उसी 10 रुपी में, पेन भी बाय करना चाहते हो, चॉकलेट भी बाय करना चाहते हो, पेंसिल भी बाय करना है. योर वांट्स आर अनलिमिटेड. आप अपने वांट को देख लो, आपकी वांट क्या हो गई, इट इज़ अनलिमिटेड इन कंपैरिजन टू योर मीन्स, और योर मीन्स आर लिमिटेड इन द रिलेशन टू डिमांड फॉर देम. आपका जो वांट है वो क्या हो गया, वांट आर अनलिमिटेड. आपकी वांट क्या हो गई, अनलिमिटेड हो गई, क्योंकि आप परचेज़ करना चाहते हो, कॉपी भी परचेज़ करना चाह रहे हो, पेन भी, चॉकलेट एंड पेंसिल ऑल्सो. बट योर मीन्स रिसोर्सेज, योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू डिमांड फॉर देम. आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं इन कंपेरिजन टू डिमांड फॉर देम. आपकी डिमांड इतनी सारी चीज़ों की है और आपका जो भी रिसोर्स है वो क्या है, बस 10 रुपीज़ है, और आपकी डिमांड क्या है, इतनी सारी कमोडिटी की है. एज योर वांट्स डिफर इन अर्जेंसी. ठीक, ऑल्सो योर 10 रुपी नोट कैन बाय एनी थिंग यू वॉन्ट टू. यू फेस अ प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस एज टू हाउ शुड यू स्पेंड 10 रुपी नोट इन सच अ वे दैट यू कैन बाय मैक्सिमम. ओके, सो हमारी जो वांट है वो, हमारी वांट क्या है, डिपेंड करती है हमारी अर्जेंसी पे. मे बी एक ऐसा इंडिविजुअल है, एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा स्टूडेंट है जो कॉपी परचेज़ करना चाहता है. उसके लिए सबसे ज़्यादा अर्जेंसी है कि उसे अभी चॉकलेट नहीं चाहिए, क्योंकि उसने चॉकलेट है उसके पास पेन भी है और पेंसिल भी है, उसे कॉपी की ज़रूरत है. एक ऐसा स्टूडेंट हो सकता है बी, जिसको क्या है, पेन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि उसके पास कॉपी तो है, पेंसिल भी है, चॉकलेट भी है, बट उसके पास पेन नहीं है कि जिससे वो राइट डाउन कर ले. एक ऐसा इंडिविजुअल है जिससे पढ़ने का एकदम मन नहीं है, वो कॉपी भी नहीं चाहिए, उसको पेन भी नहीं चाहिए, पेंसिल भी नहीं चाहिए, उसके पास सब कुछ है, बट ही वांट टू और शी वांट टू ईट दी चॉकलेट. तो वो क्या करेगा, चॉकलेट परचेस करेगा. एक ऐसा है कि जिसके पास कॉपी भी है, पेन भी है, चॉकलेट भी है, उसे पेंसिल चाहिए, उसे ड्राइंग करना है. तो तो ये क्या हो गया, 4 ऐसे स्टूडेंट हैं और मोर देन 4 ऐसे नंबर ऑफ पर्सन ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं जिसकी डिमांड क्या है, डिपेंड किस पे करती है, अर्जेंसी पे, कि किस कमोडिटी की सबसे ज़्यादा अर्जेंट नीड है. ठीक है, मेरे को भी क्या चाहिए, ये सारे का क्या है, एक ही मेरे को मैं ले सकती हूँ, क्योंकि इन 10 रुपीज़ में आप सारे कमोडिटी को परचेज़ नहीं कर सकते हो. मे बी आप 3 रुपीज़ की पेन खरीद लो, 3 रुपीज़ की ये कर लो, आप ये भी कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज़ करना है. मे बी कोई ऐसा हो कि वो क्या करे, चॉकलेट नहीं परचेज़ करना है और कॉपी भी नहीं मिल पाएगी, तो मे बी 5 रुपये की वो क्या करे, चॉकलेट परचेज़ कर ले, 3 रुपये की पेन ले ले और 2 रुपीज़ की पेंसिल ले ले. तो वो 3 कमोडिटी भी कर डिपेंड. तो ये टोटल किस पे डिपेंड करता है कि अर्जेंसी किसकी है, किस कमोडिटी की किसी इंडिविजुअल को अर्जेंट नीड है. ऑल्सो योर 10 रुपी नोट कैन बाय एनी थिंग यू वॉन्ट. ठीक है, आपकी एक वही 10 रुपी जो आपका रिसोर्स है वो ऐसे कोई भी गुड्स को वांट कर सकता है, परचेज़ कर सकता है जो आप परचेज़ करना चाह रहे हो. सो यू फेस अ प्रॉब्लम. ऐसी कंडीशन पे आपको क्या होता है, समटाइम्स प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपको हो सकता है चारों की नीड हो. तो अ प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस. अब आपको इस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम आती है कि आप किस कमोडिटी को क्या करो, परचेज़ करो, और किस कमोडिटी को आप लेफ़्ट आउट कर दो, आप उसको छोड़ दो. तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी आई, चॉइस की प्रॉब्लम आई कि आप किस कमोडिटी को परचेज़ करो. एज टू हाउ शुड यू स्पेंड 10 रुपी नोट इन सच अ वे दैट यू कैन बाय मैक्सिमम. और आप उस 10 रुपीज़ को ऐसे स्पेंड करो कि वो 10 रुपीज़ आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे दे. ठीक है,
सो द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम किसकी? मेकिंग अ चॉइस, आपको चॉइस करना कि कौन सी कमोडिटी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कौन सी कमोडिटी को अभी अर्जेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर दो। तो यही जो प्रॉब्लम है चॉइस को मेक करना, इट इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो इकोनॉमिक्स इज स्टडी of how people and society choose to employ scarce resources that could have alternative use in order to produce various commodities that satisfy their wants and to distribute them for consumption among the various person and groups in a society. ठीक, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय द स्कैर्स रिसोर्सेज। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, कैसे पीपल और सोसाइटी क्या करते हैं, अपने डिफरेंट स्कैर्स रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करते हैं दैट कुड ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिस उन रिसोर्सेज का हो सकता है जिससे वो कमोडिटी परचेज करे, उसके ऑल्टरनेटिव यूज़ हो सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटी, कि वो उन कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सके दैट सेटिस्फाइड देयर वांट, जैसे उनकी जो भी वांट है वो सेटिस्फाई हो जाए, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शन, और वो क्या करे? उसको डिस्ट्रीब्यूट करे एज अ प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर द कंजप्शन, कंजप्शन के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करे अमंग द वेरियस पर्सन, डिफरेंट पर्सन में और ग्रुप्स इन अ सोसाइटी। ठीक है, ये क्या है? एक स्टडी है कैसे पीपल और सोसाइटी में, सोसाइटी के लोग अगर रिसोर्सेज क्या हैं, आपके स्कैर्स रिसोर्सेज है, लिमिटेड अमाउंट में रिसोर्सेज हैं, तो आप कैसे उनको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में रखते हो, कैसे आप डिफरेंट ऑप्शन में रखते हो। जैसे कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन क्या करे? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर ले, कोई भी ऑल्टरनेटिव, और कोई भी प्रोड्यूसर क्या करे? प्रोड्यूस कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके कंजप्शन के लिए उन फॉर द वेरियस पर्सन, जो पर्सन और ग्रुप्स हैं सोसाइटी में। ठीक है, जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं सोसाइटी में, तो कैसे वो उन कमोडिटी को प्रोड्यूस करे और कैसे वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करे सो दैट एनी प्रोड्यूसर विल अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, वो कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एरिक रोल, economic problem is essentially a problem arising from the necessity of choice of the manner in which limited resources with alternative use are disposed of. It is a problem of husbandry of resources. ठीक है, सिंपली इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द चॉइस। आपको क्या करना है? चॉइस करना है डिफरेंट कमोडिटी का, जब आपके पास रिसोर्सेज क्या हो? ऑल्टरनेटिव हो, रिसोर्सेज क्या हो? लिमिटेड अमाउंट में हो, और आपको ऑल्टरनेटिव यूज़ का उसका जाना है। सो इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ हस्बेंड्री ऑफ रिसोर्सेज, कि आप डिफरेंट जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उनका आप कैसे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे और कैसे उसमें से आप अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अर्न कर सके। सो दस इट इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या है? इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ scarcity of resources on one hand, and that resources can be put alternative use on the other hand, और उन resources का हम कैसे alternative use कर सकते हैं। Therefore an individual has to make choice as to which wants should be satisfied with the limited resources in order to get maximum satisfaction। ठीक है, एक इंडिविजुअल क्या करता है? ऐसे चॉइस को क्रिएट करता है, मेक करता है एज टू विच वांट्स शुड बी सेटिस्फाइड, जो भी उसके वांट हैं वो सेटिस्फाई हो जाए विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अगर उसको क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अर्न करना है, वो जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने वांट्स को वो कैसे सेटिस्फाई करता है। ओके, यही होता है आपका डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम में भी कैसे इंडिविजुअल खुद को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी refers to the activity which is related to the use of scarce resources to satisfy maximum of the unlimited human wants. These are undertaken for a monetary gain. Monetary means it is related to the money. These are what economics mean by ordinary business of
life. Economics involves the study of human beings engaged in the various economic activities undertaken to earn a living. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? द एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ द स्कैर्स रिसोर्सेज, कि ये सारी एक्टिविटी जो क्या करते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, जो भी स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उनका क्या करना, कैसे यूज़ करना टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम ऑफ द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, कि जैसे जो भी ह्यूमन वांट का अनलिमिटेड वांट है, ह्यूमन वांट है, वो मैक्सिमाइज हो जाए. दीज आर अंडरटेकन फॉर द मॉनिटरी गेन. ये क्यों किया जाता है? फॉर दी अर्निंग दी मनी. मॉनिटरी मीन्स मनी के टर्म्स में उसमें गेन करना. दीज आर वॉट इकोनॉमिक्स मीन बाई ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. यही है जो सिंपल इकोनॉमिक्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ द जस्ट ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. ये एक बिजनेस है लाइफ का, कि आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हो जब आपके रिसोर्सेज क्या हैं, स्कैर्स हैं, so that you can, by utilizing the scarce resources, you can satisfy the maximum unlimited wants. So economics involves the study of human being. Economics क्या होता है? It is a study of human being, जिसमें हम लोग ह्यूमन बींग की स्टडी करते हैं. इंगेज इन दी वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो बहुत सारे डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं. अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग, इसलिए फॉर दी बेसिकली दे आर इंगेज फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू अर्न अ लिविंग, कि वो इतना ज़्यादा अर्न कर सके कि उनकी जो लिविंग है वो अपनी लाइफ को ईजिली स्पेंड कर सके. ठीक है, ये क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है. सो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड एज अंडर, फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन, सेकेंड वन इज़ कंजप्शन, थर्ड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन. Okay, so first one is production. Production is that economic activity which is related to increasing the utility of goods and services. Converting cloth into shirt is an activity of production. Here, utility is created through conversion of cloth into shirt with the help of labor, sewing machine, etc. So, study of production, we want to know how the producer chooses what to produce for the market when he know the cost and price, and this is the study of production. Okay, so production क्या होता है? Production is simply that economic activity, वो economic activity होता है which is related to increasing the utility of goods. जो किससे related होता है? कि कोई भी goods की utility को हम increase कर सके, different goods and services की utility को हम increase कर सके. That means converting cloth into the shirt. अब आपको क्लोथ मिले, जैसे आपको पहले क्या मिलेगा? कॉटन कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से मिलेगा. आप उसको क्लोथ में चेंज करोगे, क्लोथ से किस में चेंज करोगे? शर्ट में. ठीक, तो ये क्या हो गया? कन्वर्टिंग दी कॉटन इंटू क्लोथ, क्लोथ इंटू शर्ट. दिस इज़ द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन. कि आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन कर रहे हो. मीन्स to create something new. Okay, so here the utility is created through conversion of cloth into shirt. कि आप यहाँ पे हमने पढ़ा ना, increasing the utility of good, कि goods की utility को हम increase करते हैं. तो हमने क्या किया? convert कर दिया किसको? cloth को हमने shirt में change कर दिया. तो यहाँ पे utility क्या हो गया? created through conversion of cloth into शर्ट, कि हमने क्या किया? क्लोथ को शर्ट में कन्वर्ट कर दिया विद दी हेल्प ऑफ लेबर एंड स्विंग मशीन. ठीक है, किसके हेल्प से? कि लेबर्स को हमने लगाया, मशीन्स के लगाया, जिससे हमने उस शर्ट को स्टिच कर दिया. ओके, सो द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन इज़ हियर. वी वांट टू नो हाउ द प्रोड्यूसर चूजेज व्हाट टू प्रोड्यूस. यहाँ पे प्रोडक्शन की स्टडी में हमको ये करना है कि हमें ये जानना है कि कि यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करेगा? चूज़ करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, कि जब कि वो मार्केट के लिए क्या प्रोड्यूस करे. ओके, यही है स्टडी का प्रोडक्शन की स्टडी. यहाँ पे हमको यही करना है कि कोई भी प्रोड्यूसर किस कमोडिटी को प्रोड्यूस करना चाहे, वो किस कमोडिटी को सोचेगा कि हमें ये प्रोड्यूस करना चाहिए. व्हेन ही नोज़ द कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि उसे पता है कि अगर ये उसको शर्ट बनाता है तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी
और उसकी क्या प्राइस होगी. सो दिस इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन. यही क्या होता है, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे कोई भी प्रोड्यूसर चूजेस व्हाट टू प्रोड्यूस. यहाँ पे प्रोड्यूसर ये चूज़ करता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है फॉर द मार्केट. मार्केट के लिए when he properly knows what is the price and what is the cost of the producing the product, so it is the study of the production. So it's all about your today's class. We will continue further in the next class. Okay, thank you.